आपके ऊपर ये एक डेडलाइन था कि आपको 6 से 7 महीने में क्लियर करना ही है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ईयर ड्रॉप करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से लेके इंटर्नशिप तक टाइम है, तो क्यों ना उसी दौरान कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग वो कर सके। देखो, ऐसा है कि एक बार ऐसा होता है कि जब कॉलेज खत्म हो जाती है, देन यू आर अलोन एंड ईच एंड एवरी रिलेटिव विल आस्क यू क्लिनिक कब से चालू कर रहे हो, राइट। तो उस टाइम कोई फ्रेंड आपके पास नहीं है, आपके पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यू टेक डिसीजन राइट नाउ, तो आपके पास जब टाइम नहीं है, व्हेन योर फ्रेंड्स आर नॉट विद यू, यू आर अलोन, उस टाइम आपको डिसीजन अगर लेट किया तो यू आर अलोन इन योर डिसीजन। बट इफ यू स्टार्टेड अर्ली तो आपको आपके डिसीजन में हेल्प करने के लिए फ्रेंड्स, टीचर्स, एनवायरमेंट, ऑल द फोर्स विथ यू, राइट। so right time to start thinking is second year, taking decision is third and final year, and start working from final year only. डिसीजन अपने ओर से जब उनको बनाना है तो क्या सोचना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए और कितना हार्ड वर्किंग उनको रहना ज़रूरी है। हाँ, कि कुछ बनना है तो क्या बनना है, Right. तो उसके लिए हमको हमारे पास एक विजन होना चाहिए। ओके। When there is no vision for students, उनके पास जब विजन नहीं होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो फिर वो छुट्टियां लीव्स ढूंढते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिशनर है इंडिया के, वो कैसे काम करते हैं, क्या काम होता है, तो तब जाके अंदर ऐसी एक संभावना खड़ी होती है कि खुद को ऐसा होता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, राइट। एंड देन दे डोंट फाइंड लीव्स, राइट। देन दे ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। यस, फिर वो सीनियर्स को पकड़ेंगे, प्रोफेसर्स को पकड़ेंगे कि ये सिखा दो, वो सिखा दो, अंदर से आएगा। पहले थिंकिंग पैटर्न करना है कि मुझे क्या बनना है। सूडो कॉन्फिडेंस होता है कि आगे डॉक्टर तो लिख दिया है मैंने, लेकिन वो डॉक्टर ऐसे तो लिखा नहीं जाता, वो कॉन्फिडेंस काम से आता है, आपके नॉलेज से आता है, तो वो स्टूडेंट्स को एक हिट होना चाहिए कहीं पे। हमारे कल्चर में ऐसा बोला जाता था, हु इज लर्नेड पर्सन, द वन हु इज बहुश्रुत, जो ज्यादा सुनता है वो, हाँ, तो जहाँ जिसने ज्यादा सुना है वो ज्यादा एग्जीक्यूट कर पाता है। Dr. Karthik Dinoja, periodontist, implantologist, founder of Karthiktva, and the voice behind India's most famous dentist. Winner of the Golden Mike Award for Best Dental Podcast, honoured as Dental Influencer of the Year by the Dental Excellence Awards, and recipient of the Smileverse Award by the Indian Dental Association. Dr. Karthik brings you conversations that go beyond clinical success and into the real journeys behind it. This is where dentistry's biggest names reveal what success really looks like. The mistakes, the challenges, the lessons, and the moments that changed everything. The conversations behind the careers. The stories behind the success. Welcome to India's most famous dentist. A podcast by Karthiktva. You're absolutely right. Thank you very much. Whatever you are doing at the moment is also serving the nation. Thank you, Dr. Karthik. Listening to podcasts such as yours, you are not doing dentistry, you are doing self-development. So, what are you waiting for? Grab your popcorn, sit back, relax, and enjoy the show. Welcome, sir. Welcome to the show. थैंक यू। How are you doing, sir? यस, फाइन। ऑलराइट सर। सर, बहुत सी बातें करेंगे हम, लेकिन शुरुआत करेंगे आपकी जर्नी से। सो हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी इन डेंटिस्ट्री? टेल अस अबाउट। So I started in 2002, and from 2002 I have completed in 2007. But one of my life mission is to join a postgraduate cultural course, and that is at Mumbai. Okay. In 2008 to 10. I have joined that 2 years postgraduate cultural course. Nice. So when I started with that, before joining to the course, I met my dean at my college, and I conveyed to sir that sir, I am completed my graduation, and I want to pursue postgraduate study in a Indian culture course. So he was amazed at that time. Right. He told that so we will have Samir Anandji instead of Dr. Samir after 2 years. So at least you recognize us when we visit Chardham, because you are leaving dentistry and doing something else. So
But after 2 years, when I came back from the course, and I again given entrance in 2011, and then I cracked the entrance, and I secured 7th rank Okay. after 3 years of break, and then I have taken in orthodontics at Karnavati College, राइट. and I completed in 2014 with MBS orthodontics. बट जैसे आपके डीन ने बोला कि आप समीर आनंद, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, योर मोटिव माइट बी डिफरेंट एट दैट टाइम. वो क्या था, उसके बारे में अगर आप कुछ हमें बता सके. देखो, ऐसा है कि मुझे एक मेरे अंकल ने पूछा था, ओके. सो ही ऑल्सो वरीड अबाउट मी कि तुम ये सब डेंटिस्ट्री करके इसमें जाओगे, सब भूल जाओगे, Right. वापस ज्वाइन करोगे तो कितना हो पाएगा, एंड व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड ऑल. सो ही इज वेरी क्लोज टू मी, और वो मेरी चिंता भी इतनी करते थे कि क्यों आप ज्वाइन कर रहे हो ऐसा. तो मैंने एक आंसर दिया उनको कि वी गिव अवर 25 years राइट. for getting graduation or post graduation degree, for earning of money. So we are taking 25 years to utilize our 8 to 10 hours a day. Right. इनके 8 से 10 घंटे हमको क्या करना है पैसे कमाने के लिए, उसके लिए हम 25 साल देते हैं. लगा देते हैं. लेकिन वो कमाने के बाद कैसे जीना है, हाँ. वो 16 घंटे वो पैसे को कैसे यूटिलाइज करना है, हमारे टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, उसके लिए मुझे 2 साल देने थे. सो माई पेरेंट्स अलाउड मी, मुझे मेरे मम्मी पापा ने अलाउ किया, एंड आई एम यूटिलाइजिंग दैट 16 hours in a better way after these 2 years. व्हाट नोबल थॉट. मतलब बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं. कमिंग डायरेक्टली टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसकी आफ्टर इफेक्ट्स आपके करियर पे क्या थी? आपका माइंडसेट पूरा मतलब चेंज हो गया होगा, आपका अप्रोच बदल गया होगा, तो उसके ऊपर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैं 3 साल के बाद जब अपियर होने जा रहा हूँ एंट्रेंस के लिए, राइट. तो मेरे कलीग कोई भी, मेरे फ्रेंड्स कोई भी साथ में नहीं थे, एंड आई एम कॉम्पिटिंग विद माई जूनियर्स. सो उसमें ऐसा था कि जो कोई 1 साल से ट्राई कर रहा है, कोई 2 साल से ट्राई कर रहा है, कोई 3 साल से ट्राई कर रहा है, कोई 1 मार्क के लिए, 1 पॉइंट्स के लिए चूक गया है एंट्रेंस, तो उन लोगों के सामने मुझे कॉम्पीट करना था. एंड माई कोर्स वॉज टोटल रेसिडेंशियल, सो आई डोंट हैव एनी सिंगल बुक विथ मी और एनी क्लिनिकल, बिकॉज इट्स अ रेसिडेंशियल. आई कैन नॉट गो आउट ऑफ दैट माई कैंपस except Sundays. So I am out of contact for the clinical and academics part of it. ओके. तो मेरे सामने वो चैलेंज था कि मुझे 6-7 महीने के अंदर वो एंट्रेंस क्लियर करना है. अगर वो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो उसके बाद मैं नेक्स्ट ट्राई नहीं ले सकूंगा. ऑलरेडी आई हैव स्पेंड 3 years, देन आई हैव टेकिंग अगेन 1 year ब्रेक फॉर द एंट्रेंस. तो वो एक चैलेंज जो लाइफ के अंदर आपके सामने आती है, और वो चैलेंज को टेकल करके कैसे आगे बढ़ना है, राइट. वो जो सोच अपने अंदर डेवलप होती है. तो उसका फर्स्ट एग्जांपल वो आया राइट. कि आउट ऑफ 25,000 स्टूडेंट इन Right. ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, आई वाज सिक्योर्ड 181 रैंक ओह. आफ्टर 3 years of gap. राइट. And in Gujarat state I secured 7th rank. ओह. So that is my first experience कि मुझे वो 16 घंटे कैसे जीना है लाइफ टाइम, उसके लिए जो मैंने किया था, तो मेरे सोच में, मेरे विचारों में, मेरे डिसीजन मेकिंग में उसका जो इफेक्ट आता है, दैट वाज अ मैजिकल डिफरेंस इन माय एटीट्यूड कि ये चैलेंज मैं कर सकता हूँ. एंड वंस आई क्लियर दैट एग्जाम, आई टूक अ चैलेंज एंड आई क्लियर द एग्जाम, आई गॉट द बेस्ट. राइट. Then I have chosen orthodontics, and I have done my post graduation. So I can do both the things, like masters as well as my postgraduate cultural course, where I studied Indian philosophy, Western philosophy, world religion, comparative study of Indian philosophy as well as Western philosophy, Indian epics, Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, and the English literature, right, where I studied the poems of Wordsworth and dramas of Shakespeare. So all different kind of studies I have. You have explored a lot. Yeah. Okay. You used word decision making. आपके ऊपर ये एक डेडलाइन था कि आपको 6 से 7 महीने में क्लियर करना ही है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब ऐसा सोचते हैं जो ईयर ड्रॉप करते हैं. अभी तो मतलब ऐसा कुछ डेडलाइन नहीं है. आई विल डायरेक्टली जंप कि उनके पास वैसे देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से लेके इंटर्नशिप तक टाइम है.
तो क्यों ना उसी दौरान कुछ ऐसा डिसीजन मेकिंग वो कर सके, ऐसा कुछ आप टिप्स शेयर करें हमारे साथ। देखो ऐसा है कि ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, दैट इज 50% ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट। ओके। उनका जो काम है वो 50% है। 50% रोल पेरेंट्स और टीचर्स का होता है। ओके। सो अवर इंस्टीट्यूट शुड गाइड देम। Right. हमारी कॉलेज के अंदर ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए राइट। कि सीनियर्स उनको गाइड करने लगे, टीचर्स गाइड करने लगे, हाँ। पेरेंट्स एजुकेशन भी होना चाहिए कॉलेज में ईयरली, हाँ। कि बच्चों को कैसे डिसीजन लेना है। बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन देयर इज अ डेडलाइन, हाँ। व्हेन यू कंप्लीटिंग योर फाइनल ईयर एग्जाम, यू हैव 1 ईयर, तो 1 साल के अंदर आपको कैसे यूटिलाइज करना है फॉर परसुइंग MDS, फॉर गोइंग अब्रॉड। So that is golden time, because when all the friends with you, हाँ। you get the company of many who are preparing for the abroad, who are preparing for the Canada, US exam or Australia exam, or you also find many preparing for the MDS entrance exam in India. राइट। So you'll get company, you will get guide, and you have force to work with you, because you are in environment of college. एक बार ऐसा होता है कि जब कॉलेज खत्म हो जाती है, then you are alone. And each and every relatives will ask you कि बेटा क्या कर रहे हो, हाँ। क्लिनिक कब से चालू कर रहे हो। तो आपके अंदर एक ड्रीम है कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इतना आगे पढ़ूंगा, यहाँ जाऊंगा। और जो भी रिलेटिव मिलता है वो पूछता है कि क्लिनिक कब चालू कर रहे हो, हाँ। मुझे ये दांतों में प्रॉब्लम है, ये यस। सब। हाँ। तो उस टाइम कोई फ्रेंड आपके पास नहीं है, आपके पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यू टेक डिसीजन राइट नाउ। तो आपके पास जब टाइम नहीं है, व्हेन योर फ्रेंड्स आर नॉट विथ यू, यू आर अलोन, तो उस टाइम आपको डिसीजन अगर लेट किया तो यू आर अलोन इन योर डिसीजन। बट इफ यू स्टार्टेड अर्ली, तो आपको आपके डिसीजन में हेल्प करने के लिए फ्रेंड्स, टीचर्स, एनवायरमेंट, ऑल द फोर्स विथ यू। राइट। सो राइट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग इज सेकंड ईयर, Okay. टेकिंग डिसीजन इज थर्ड एंड फाइनल ईयर, Okay. एंड स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम फाइनल ईयर ओनली। ये बात हो गई बाहर के फैक्टर्स की। स्टूडेंट जब एक सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, एक अगर टर्म उनकी हो गई तो 1 आध महीने की रहती है, उस दौरान उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि वो क्या कंसीडर करते हैं कि हाँ यहाँ पे मुझे लीव ज्यादा मिल रही है, यहाँ पे मुझे फ्री टाइम ज्यादा मिल रहा है, ये डिपार्टमेंट में हवा अच्छी आ रही है, काइंड ऑफ ये उनका सब्जेक्टिव भी हो सकता है, नो ऑफेंस। डिसीजन अपने ओर से जब उनको बनाना है तो क्या सोचना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए और कितना हार्ड वर्किंग उनको रहना जरूरी है? देखो एक बात कही जाती है कि अगर हमको कुछ बनना है तो हमको उनसे पॉइंट ऑफ व्यू से विचार सोचना पड़ेगा। हाँ। कि कुछ बनना है तो क्या बनना है। Right. तो उसके लिए हमको हमारे पास एक विजन होना चाहिए। ओके। व्हेन देयर इज नो विजन फॉर स्टूडेंट्स, उनके पास जब विजन नहीं होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो फिर वो छुट्टियां, लीव्स ढूंढते हैं, एस्केपिज्म आ जाता है, राइट। कंटाला आ जाता है, हाँ। क्या करे क्या नहीं करे। बट व्हेन दे आर ओरिएंटेड टू देयर गोल्स, क्या बनना है, अगर उसको अप्रोच किया जाए हाँ। तो ये इजी हो जाता है, क्योंकि फिर अंदर से कुछ होता है स्टूडेंट को कि मुझे ये करना है। राइट। So all are different personalities, all are different students. So they might get interest in different speciality. तो कहीं में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, कहीं में कम इंटरेस्ट रहेगा। बट व्हेन यू एक्चुअली एंटर्स इन द फील्ड ऑफ वर्किंग, क्लिनिकल प्रैक्टिस, राइट। तो इवनिंग टाइम में या फिर इफ यू स्क्रॉल डिफरेंट सोशल मीडिया, यूट्यूब एंड ऑल, स्टूडेंट को यूटिलाइज करना चाहिए कि जो बड़े बड़े क्लिनिकल प्रैक्टिशनर है इंडिया के, वो कैसे काम करते हैं, क्या काम होता है। हाँ। या फिर शाम को कहीं ज्वाइन करे क्लिनिक सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए कि कैसे द How do they डॉक्टर work? Yeah. पेशेंट्स एंड व्हाट पेशेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। राइट। सो तब जाके अंदर ऐसी एक संभावना खड़ी होती है कि खुद को ऐसा होता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। राइट। एंड देन दे डोंट फाइंड लीव्स, लीव्स। देन दे ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी। यस। फिर वो सीनियर्स को पकड़ेंगे, प्रोफेसर्स को पकड़ेंगे कि ये सिखा दो, वो सिखा दो, तो अंदर से आएगा। पहले थिंकिंग पैटर्न करना है कि मुझे क्या बनना है। अगर Okay. वो विजन टीचर और कॉलेज प्रॉपरली कन्वे कर पाई Right. और वो विजन अंदर से खड़ा हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम नहीं रहता। वो अंदर से खड़ा नहीं होता है, देन रियलाइज होता है जब आपका क्लिनिक ओपन होता है उसके दूसरे दिन पता चलता है। हाँ। अच्छा। Because you have to deal the patient, हाँ, and हाँ. patient expect that you are the brand ambassador of dentistry, Yes. and you know each and everything. या। राइट। So they expect many things, and then you have conflicts with your knowledge हाँ, and patient yes. expectation. हाँ, क्योंकि वो एक सूडो कॉन्फिडेंस होता है कि आगे डॉक्टर तो लिख दिया है मैंने,
लेकिन वो डॉक्टर ऐसे तो लिखा नहीं जाता, वो कॉन्फिडेंस काम से आता है, आपके नॉलेज से आता है, तो वो स्टूडेंट्स को एक हिट होना चाहिए कहीं पे। ऑलराइट सर, कमिंग बैक टू यू, आपने ये जो बीच में छोड़ा उसके बाद फिर से शुरू किया, उसके लिए आपने फिर से अपने हाथों की जो मतलब वो ट्रेनिंग होती है उसके लिए कुछ किया था कि वो छूट गया था, ऐसा कुछ? ऑफ कोर्स वी नो, हम ड्राइविंग छोड़ देते हैं फिर 2 साल बाद फिर से गाड़ी उठाते हैं तो वैसे ही चलती है। स्पेशल प्रैक्टिसेस फॉर एनी डेंटल प्रोसीजर्स और एनीथिंग लाइक दैट? जब मैं ये 2 साल कल्चरल कोर्स करके वापस आया तो मुझे भी ये डायलेमा था कि मुझे प्रैक्टिस छोड़ दी है, 3 साल हो गए हैं, अभी और 1 साल छूट जाएगी तो मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे वापस आऊँगा। राइट। सो आई स्टार्टेड विद द क्लिनिकल प्रैक्टिस इन इवनिंग टाइम ओके। एंड पार्ट टाइम आई विल स्टडी। सो फॉर्चुनेटली मेरे जो सर थे जहाँ मैं जाता था प्रैक्टिस के लिए, आफ्टर 20 days he told me that Samir, whatever you want to learn from clinical side, I will teach you, don't worry about it. If you want to crack exam, you leave this Okay, and give right. your full attention to your preparation. राइट। और उनके फोर्स करने से मैंने वो छोड़ दिया और फिर 6 महीने मैंने फुल टाइम 18 to 20 आवर्स फोकस किया इसके ऊपर, ओके। क्योंकि मुझे काफी कुछ कवर करना था। 6 महीने मुझे याद करना था कि क्या मैं पढ़ा था पहले, तो उसके बाद उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ। तो ऐसे टीचर्स मिलना यस, बहुत बड़ी बात है। बहुत एंड आई एम hectic. फॉर्चुनेट इनफ दैट आई गेट दिस टाइप ऑफ टीचर्स इन माय लाइफ। वेरी ट्रू। हम ग्रेटफुल रहते हैं उनसे, मतलब थैंकफुल रहते हैं पूरी लाइफ टाइम। ये याद रहता है कि कोई ऐसा, वी आर फॉर्चुनेट कि ऐसा कुछ हमें मिला था उस टाइम पे। आपने जब ऑर्थो में एडमिशन लिया, इतने सालों की प्रैक्टिस है, वायर्स के साथ डील करते हैं, फिंगर्स की केयर करने के लिए कुछ करते हैं या नहीं? नहीं, ये है कि ऑर्थो में जब हम सोचते हैं Right. तो ऐसा आता है कि वायर बैंड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली व्हेन यू एंटर इन अ प्रैक्टिस, हाँ। यू रिक्वायर्ड वेरी सॉफ्ट स्किल Okay. इन योर प्रैक्टिस। हाँ। तो इतना है कि आपको अपना जोर कम करना पड़ता है, बिकॉज इन ऑर्थो इट सेज लाइट एंड कंटिन्यूअस फोर्स। राइट। सो लाइट फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो आपको अपना फोर्स कम करना पड़ता है, आपकी स्पीड कम करनी पड़ती है। तो एक धैर्य जो है हाँ। वो एक जीवन में फर्स्ट डे से आ जाता है, राइट। बिकॉज यू नो द स्ट्रेटनिंग ऑफ वायर इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट। एग्जैक्टली। सो प्रैक्टिस में ऐसा है कि वो स्ट्रेटन किया हुआ वायर कभी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काम नहीं आता है, ओके। लेकिन काम आता है कि वो स्ट्रेट करने के लिए जो धैर्य रखना पड़ता है, वो धैर्य वहां पर काम आता है। तो आई थिंक वो धैर्य सिखाने के लिए वो काम हमसे करवाया होगा। पर्पस कुछ अलग है। ओके, ऑलराइट सर। नाउ वी विल डायरेक्टली जंप टू योर क्लिनिकल प्रैक्टिस। हाउ डू यू डील विद द पेशेंट्स? आजकल ये कुछ क्रेज हो गया है बच्चों में जो अभी अपनी टीन एज में आ रहे हैं कि मेरे दोस्त ने ब्रेसेस करवाए हैं, मुझे भी करवाने हैं। पापा मुझे ये दांत थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो उनके लिए क्या, मतलब वो एस्थेटिक तो है, लेकिन जो आपके पेशेंट्स रहते हैं जो टीन एज में है, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जब टीनेजर्स आते हैं तो उनकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है, हाँ। एंड दैट इज द कॉस्मेटिक एक्सपेक्टेशन, राइट। एस्थेटिक एक्सपेक्टेशन। जब आप चेक करते हैं क्लिनिकल चेक के बाद, तब आपको रियलिटी फेस करनी है, और वो रियलिटी पेरेंट्स को समझानी है कि ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नॉट, बिकॉज टूथ इज अ मल्टी फंक्शनल unit, yes. because it helps in the speech, it helps in the chewing mastication function as well as cosmetic, look wise, smile wise. राइट। तो पेरेंट्स को पहले तो समझाना है कि इसमें फंक्शनल प्रॉब्लम है कि नहीं, ओके। स्पीच प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकते हैं नहीं, ये कंडीशन है। तो ये सब अगर है, देन यू आर द अथॉरिटी, बिकॉज दे कम टू अस, राइट। बिकॉज वी आर द अथॉरिटी। सो अथॉरिटी से कन्वे करना है आपको, ओके। हो जाएगा, देख लेंगे, बाद में आप चेकअप करोगे। यू आर द अथॉरिटी, यू हैव टू से perfectly that right now there is no treatment required, but he will require at the age of 11 years or 11 to 12 years. Right. So give them straight answer with authority, Okay. so they can decide Okay. that treatment required is not. And when you use your word with the authority, it will be easy for them to take decision. Right. Okay sir. मतलब बहुत डेंटिस्ट्री की बातें हो गई। अभी आपका जो फिर सब डेंटिस्ट्री में आप आए, उसके पहले आपने वो कल्चरल आपका कोर्स किया। रिसेंटली यू रॉट अ बुक
उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? I brought book name is Janmantar and it's on Garbh Sanskar. ओके. So I used to write a small thing Right. since years, ओके. but when lockdown came, I have nothing to do in a clinical practice. True. And we all were at home. Yeah, right. So I utilized that time ओके. to get my passion in the converting a writing. success. Okay. And I wrote 4 stories on WhatsApp. And after I write chapter wise in the WhatsApp group, ओके. in 2 WhatsApp group, and I send to the few friends. ओके. And then I compile one book that is called Janmantar. जन्मांतर. ओके. And I have 3 books pending. One is Mind versus COVID. ओके. Second is Vinayak, that is the fundamental concept of Right. Ganesh Puja, the concept of Ganesh राइट. in our culture. And third is on Sita. The Okay. title is Sita nu Swabhiman. ओके. So my main focus is teenagers and youngs who can understand our religion intellectually. ओके. राइट. एक बुद्धिगम बहुत हमारे लॉजिक से हमको हमारे रिलीजन को, हमारे कल्चर को, हमारी स्पिरिचुअल कंसेप्ट को समझना है. राइट. तो वी कैन नॉट इंडल्ज स्टोरी डायरेक्टली बिकॉज दे विल कंसिडर एज अ माइथोलॉजी. या. राइट. Apart from mythology, I put the facts, logical sequence, and why our rishis and acharyas and avatars put this in our system of culture or spiritual system. राइट. So वो concept मैं स्टोरी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता हूँ, ओके. क्योंकि थियरी है वो कोई पढ़ता नहीं है. राइट. राइट. And again, this era is 2020 era. So no one will read a large book. So I use small content in a large story. So once you start, you want to finish the story, and it's a small chapters. हाँ, क्योंकि वो क्रिस्प रहता है. राइट. ओके. आपने जैसे बताया कि आजकल कोई इतना पढ़ता नहीं है, आप इतना लिखते हैं, आपका खुद का इंटरेस्ट है, आप मतलब बहुत पढ़ते होंगे और बहुत सी किताबें आज तक आपने पढ़ी होंगी. वुड यू लाइक टू शेयर सम टिप्स फॉर आवर जनरेशन कि इतना कुछ कैसे बैठ के पढ़ सकते हैं? मतलब ऑफ कोर्स इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन क्या ऐसी कोई मतलब टिप्स होगी, कुछ ट्रिक्स होगी जो आपने भी कभी कभार आपको भी बोर्डम हिट किया होगा, तो क्या अप्लाई करते थे अदर देन डेडलाइंस? देखो, पढ़ाई के लिए ऐसा है कि अगर हमारे अंदर पैशन है कुछ करने की, हाँ. या हमारी हॉबी है, तो हमको उसको इजीली अप्रोचेबल रखना पड़ेगा. ओके. हम फेसबुक, यूट्यूब ये सब क्यों यूज कर सकते हैं? व्हाट्सएप बिकॉज इजीली अवेलेबल, इजीली अप्रोचेबल. हाँ. तो आपको अगर करना है, once you enter in the real life, day-to-day practice, when you have kids, your family, so you don't find any time to read specifically. राइट सर. So I put one book beside my bed, ओके. and before sleep I used to read every day. ओके. And now there's a time change. There is a audiobooks available. Right. So whenever I drive, I start my Yeah, we can Bluetooth, utilize our time. utilize the time. Right. So अभी ऐसा है कि पढ़ने से ज्यादा सुनने का टाइम ज्यादा मिल जाता है ड्राइविंग में. राइट. So I राइट. utilize that time. हाँ, मतलब मीडियम हैज चेंज्ड Changed. बट कंटेंट इज द सेम. क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा बोला जाता था कि Okay. who is learned person, राइट. the one who is बहुश्रुत, जो ज्यादा सुनता है वो. हाँ. राइट. तो हमारे वहां पहले ये था कि कथा होती थी, प्रवचन होते थे, तो जहां जिसने ज्यादा सुना है वो ज्यादा एग्जीक्यूट कर पाता. सो Amazon Audible इज अवेलेबल, कुको FM इज अवेलेबल. राइट. राइट. नाइस सर. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस पे एक अलग एपिसोड हमें शूट करना होगा. विल बी शूटिंग इट वेरी सून. आई विल प्लान समथिंग अपार्ट फ्रॉम इंडियाज मोस्ट फेमस डेंटिस्ट. ऐसा कुछ हम स्टार्ट करते हैं. श्योर. Anyway, sir, thank you so much for your time and thank you for your efforts and the knowledge you shared with us. It was nice having you on the show. Thank you so much. Thank you, doctor, for being with me, and it's good opportunity for me also.